ब्लड टेस्ट का मायना ये होता है कि वो कोई भी टेस्ट हो, राइट? एंड दैट्स व्हेन यू से डायग्नोस्टिक्स, तो आपका मतलब है डिफरेंट ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू, कि क्या बीमारी है, इन्फेक्शन है कि नहीं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर द लार्जर ऑडियंस. तो जब हम डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं अर्जुन, आपकी एकदम बात सही है. इसमें एक पार्ट होता है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी के अंदर आपके ब्लड टेस्ट आते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स के जो हम टेस्ट करते हैं. One other thing that you have actually mentioned in this जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में, आपने इसको साइलेंट पैंडेमिक बोला है. एंड यू हैव नॉट सेड कि खाली ये इंडिया का प्रॉब्लम है, आपने बोला है पूरी ग्लोब का प्रॉब्लम. इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, राइट? बड़े सालों से ये एंटीबायोटिक्स ने पूरे पॉपुलेशन जो दुनिया की है हैज हेल्प्ड इट अ लॉट टू ओवरकम एंड ट्रीट दीज वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. Tell us about allergies. Tell us about the tests that you have. And at what stage should someone say, okay, let me come and do a comprehensive, test? Now, in India, in the past 20 years or 2 decades, there has been a 3x increase in the number of allergies that a person has. एक तो अर्बनाइजेशन है और एक हमारी डाइट है जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जैसी चीज़ें होती हैं. Welcome to Health Mantra in our show Health Matters. I'm Arjun Bhagat. And today we have a very special guest with us, someone who leads one of the most prestigious labs of India. It's called Dr. Dang Lab. And अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको डॉक्टर डैंग लैब के बारे में पता होगा. We have the CEO of Dr. Dang Lab. Let me first start with you. You're so young, you're the CEO. Tell us about your background. So Arjun, firstly, my thanks to having me here and giving me this opportunity to interact with you. And broadly, Arjun, if I have to put my entire life in a nutshell, is that the reason that I got into medicine again was because of my late grandfather. And we lost him a couple of years back, but he was a doctor from the partition times. He was a physician, actually, just an MBBS. But having grown up listening to his stories, how during the partition time he had to probably do every specialist's work, from delivering babies to surgeries, and just being inspired from the work that he'd done, and with the single core focus of actually having a larger community impact with the work that we do in the medical what field. was his name, so that our audience Yes, so knows? his name was Dr. M.L. Dang, Right. and he used to practice in Patel Nagar, that's in West Delhi, for many years. And that is how initially I developed a fondness towards this particular profession. And post that, I obviously completed my schooling in Delhi, post which I did my MBBS and my MD in Chennai, down south. And obviously my parents had this legacy profession of a pathology lab, and my mother being a pathologist, my father being a microbiologist, and it only made sense to pursue the same field since I was had my heart on medicine. Diagnostics was something where I did feel that there is a huge gap in the country, not with volumes but with the kind of value that labs are providing, and with these abundant options that people had, and even post the pandemic now these so और जो many. जो ज़्यादा लोग जो यूज़ करते हैं टर्म, वो होता है ब्लड टेस्ट. और ब्लड टेस्ट का मायना ये होता है कि वो कोई भी टेस्ट हो, राइट? एंड दैट्स व्हेन यू से डायग्नोस्टिक्स, तो आपका मतलब है डिफरेंट ब्लड टेस्ट टू फाइंड आउट व्हाट एल्स यू, कि क्या बीमारी है, इन्फेक्शन है कि नहीं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर द लार्जर ऑडियंस. तो जब हम डायग्नोस्टिक्स बोलते हैं अर्जुन, आपकी एकदम बात सही है. इसमें एक पार्ट होता है पैथोलॉजी. पैथोलॉजी के अंदर आपके ब्लड टेस्ट आते हैं, स्टूल टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स के जो हम टेस्ट करते हैं. और इसके अलावा एक और मेजर कैटेगरी होती है रेडियोलॉजी, जो आपका इमेजिंग होता है, स्कैन्स होते हैं जिसमें आपके एक्स-रे, सीटी तो आप लोग स्कैन, दोनों करते एमआरआई. हैं? हम पैथोलॉजी करते हैं, हमारा फोकस पैथोलॉजी पे है. डॉक्टर, you've also specialized in the liver, right? So Yes. उसके बारे में थोड़ा, और आप इंग्लैंड भी गए पढ़ने के लिए. तो चेन्नई के बाद मैंने पहले अपोलो में काम करा, जो दिल्ली में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है. इसमें मैंने हिस्टोपैथोलॉजी के डिपार्टमेंट में काम करा. हिस्टोपैथोलॉजी इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ स्टडिंग कैंसर्स. जैसे कोई भी बायोप्सी अगर कराते हैं तो वो बायोप्सी फिर हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास आती है, जिसे हम माइक्रोस्कोप में देख के ये बताते हैं कि क्या क्या इशू है या कैंसर है,
और उसकी पढ़ाई करी मैंने अपोलो में और वहाँ पे काम करा। उसके बाद एक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है दिल्ली में जिसका नाम है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। वेरी फेमस एब्सोल्युटली। सो वहाँ पर मैंने और पढ़ाई करी और काम करा इन द फील्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड हेमाटोलॉजी। तो उसमें आपको समझने के लिए, जैसे जो ब्लड कैंसर्स होते हैं, ल्यूकीमियाज बच्चों में ज़्यादा पाए जाते हैं, वहाँ पर मैंने उसके पैथोलॉजी वाले डिवीजन में काम करा। इसके दौरान मेरा और इंटरेस्ट बढ़ा, जिसमें मुझे लिवर एंड जीआई पैथोलॉजी के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो उसके लिए लंदन में किंग्स कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ पर मैंने एक फेलोशिप करी। एक आजकल दौर कह लीजिए या दौड़ कह लीजिए कि लोग बोल रहे हैं हमें टेस्ट कराना है, फुल बॉडी चेकअप होता है, और 10-20 किस्म के ब्लड टेस्ट होते हैं। आई थिंक इन अ वे दैट इज गुड, बट डू वी नीड सो मेनी टेस्ट्स? ओके, सो क्योंकि पैकेजेस आते हैं उनके हाँ जी। और एडवर्टाइज करते हैं। कोविड से पहले 2019-20 से पहले टोटल इंडिया में कहा जाता था कि 1 लाख के करीब पैथोलॉजी लैब हैं। अब कोविड के बाद ये सेम नंबर 1 लाख से 3 गुना होके 3 लाख हो गया है। इसका कारण यही है, 4 साल में 3 गुना हो गया। 1 लाख से लैब्स जो भारत में होती थी, अब वो 3 लाख हो गई। करेक्ट। और ये 3 गुना इसलिए हुआ है क्योंकि कोविड के दौरान तो आपने देखा होगा, जैसे सब लोग ही टेस्ट करा रहे थे। तो जो हमारे प्राइवेट एक्विटी फर्म्स होते हैं, बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे फार्मा कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गई, इन सब ने ही सोचा कि हम क्यों ना लैब लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत मुनाफा होता है और इट हैड दिस लुक्रेटिव इमेज टू इट। ये हेल्थ पैकेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाते हैं और इसी के कारण बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस बात की अवेयरनेस हो रही तो है। आई है। अवेयरनेस हो रही है कि हमें अपनी जांच करानी चाहिए। ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें कोई भी आपको लक्षण नहीं होंगे, बट अंदर आपके शरीर में वो पनप रही हैं, और उसके लिए अगर आप टेस्ट करा के पहले ही उन्हें उनकी जांच कर लें, देन उनके लिए दवाई और ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेक के लिए, हमारा नाम तो सेम है ही, बट आप हमारी उम्र भी सेम कर दें। सपोज हम दोनों 35 साल के हैं और हम एक लैब में जाते हैं आज, कहीं सोच के कि अच्छा मुझे कुछ टेस्ट करा देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है बट टेस्ट करा देता हूँ। इस कैटेगरी को हम वेलनेस बोलते हैं। तो मैं और आप अगर एक लैब जाते हैं और हम हेल्थ फील्ड से नहीं है, तो हम 2 चीज़ें हैं जिस पे अपना हेल्थ पैकेज चूज करते हैं। पहला है हमारा बजट, कि हमें 2,000 स्पेंड करने हैं, 3,000, 4,000 ऐसे। और ये बात मुझे कभी समझ नहीं आई है। वो बोलते हैं जी महंगा लग रहा है 3,000 का, चलिए आप 1,500 का ले लीजिए। Exactly. हाउ डज दैट हेल्प यू? एग्जैक्टली। तो एक हमारा बजट हुआ क्राइटेरिया। सेकंड बजट हुआ जो हमें बेसिक मेडिकल जानकारी है, जैसे अच्छा मेरा लिवर फंक्शन कर दो, मेरा कोलेस्ट्रॉल चेक कर दो, मेरे फैमिली में किसी को थायराइड या डायबिटीज़ था, अच्छा भैया वो भी कर दो। आजकल सब लोग ये विटामिन डी के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत ही रैंडम आर्बिटरी वे होता है जिससे हम पैकेज सिलेक्ट करते हैं। तो आप बोल रहे हैं कि साइंटिफिक, दैट इज नॉट द साइंटिफिक वे, ये नहीं है। करेक्ट। देयर हैज टू बी अ बेटर वे। So this way is, if I have to put it in one phrase, it would be one size fits all. अब 2 लोग जो 35 साल की उम्र के हैं एक लैब जाते हैं, सिमिलर बजट है और सेम ही टेस्ट कराते हैं, जबकि उनके हेल्थ गोल्स, उनकी प्रीवियस हिस्ट्री, उनकी मेडिकल हिस्ट्री, उनकी पास्ट रिपोर्ट्स और क्या खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, इट्स टोटली डिफरेंट। एग्जैक्टली। जो आपकी फैमिली में लोगों को कंडीशन है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज मैं हूं, मुझे शायद वेट लॉस की जरूरत है, तो मैं अपना हेल्थ गोल वेट लॉस मानता हूं, जबकि आपको अपना स्लीप बेटर करनी है रात को। वैसे ही कोई महिला होंगी जिन्हें अपने हॉर्मोन्स को चेक करना है, कोई और लेडी होंगी जिनको शायद कोई और इशू हो, जैसे हेयर एंड स्किन का, जिसमें वो उस पे वर्क करना चाहते हैं। एंड अभी हमने अर्लियर दिस ईयर ही एक ऐसा फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट लॉन्च करा है, एंड दिस इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट दैट एनीवन कैन लॉग इन anywhere in the globe and take a quick 3 to 4 minute quiz. So what's the website? The website is called Discover by drdangs.com. Right. And you can access it from your mobile phone, your laptop. This is a quiz. You can take it. So you have to start with your mobile number or your email ID. एक आपको OTP आता है, उससे आप authenticate करते हैं। उससे आगे जाके there's some basic questions about you. Most importantly हम आपको ये question पूछते हैं कि अपना health goal choose करें। इसमें 8 से 9 health goals होते हैं depending on your gender.
उसमें थिंग्स लाइक लॉन्जेविटी, कुछ लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती, कोई हेल्थ गोल नहीं होता, बट लंबा तो सब जीना चाहते हैं, लंबा और हेल्दी। सो दैट इज द मेन गोल दैट पीपल चूज फॉर। इसके अलावा और भी गोल्स हैं, जैसे आपको वेट लॉस हो गया, कुछ लोग ज्यादा फिटनेस पे फोकस करते हैं। तो काफी सारी चॉइसेस आपने दे रखे हैं अपने फॉर्म में। करेक्ट। उससे एक बारी जब आप वो चूज करते हैं, उसके बाद हमारा एआई पावर्ड एल्गोरिदम है जो आपके हेल्थ गोल और बेसिक हिस्ट्री के मुताबिक आपको कुछ टारगेटेड क्वेश्चंस पूछता है। उन टारगेटेड क्वेश्चंस के अलावा आपके जो फैमिली हिस्ट्री है वो भी बहुत ज़रूरी होती है, उसके बारे में भी वी प्रॉम्प्ट यू, उसकी इंफॉर्मेशन सब कुछ विद इन 3 or 4 minutes आर एल्गोरिदम देन जनरेट्स, दैट इज डिजाइन बाय आवर डॉक्टर्स, एंड आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड bespoke यूनिक पैकेज क्रिएट होता है। पैकेज मतलब कौन से टेस्ट आपको Yes, कराने चाहिए? yes, it's not- तो डिस्कवर आपको बताएगा कि ये 10 टेस्ट करने हैं आपने बेस्ड ऑन व्हाट योर सिलेक्शन हैज। करेक्ट। आई टेल यू दैट यू नीड अ विटामिन B12। आप तो जानते हैं कि अक्सर जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। सो एंड में डिस्कवर जब आपको ये बताता है कि B12 का टेस्ट करना है, उसके साथ एक साइंटिफिक पब्लिकेशन होती है अच्छा। दैट वैलिडेट्स द टेस्ट कि क्यों टेस्ट आप B12 का करा रहे हैं। Exactly, because this is not a commercial venture. Right. The entire aim behind this is people talk about cost per test. Discover talks about value per test. Right. Our pitch is that being industry leaders for the entire industry to understand that one size does not fit all in healthcare. It has to be personalized. You also seem to be innovators and you've been doing a lot of research. Now, one area of research that I found very interesting was the antibiotic resistance, जो कि काफ़ी सुनने को मिल रहा है, which basically means that you're resistant to the antibiotic medicines, right? सो अर्जुन, हम बहुत ज़्यादा बीमारियों के बारे में बात करते हैं, एंड जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, ब्रॉडली 2 अलग तरह की चीज़ें होती हैं, वायरसेस और बैक्टीरिया। इसके अलावा फंगस और ऐसी चीज़ें भी होती हैं, बट कॉमनली आपको या तो कोई वायरस करता है इन्फेक्ट, जैसे कोविड बहुत कॉमन वायरस था, या कोई बैक्टीरिया होता है जिससे आपकी तबीयत खराब होती है। मोस्ट कॉमनली लोगों को या गला दर्द होगा, या यूरिन इन्फेक्शन होगा, पेट में इन्फेक्शन होगा। One other thing that you have actually mentioned in this जो antibiotic resistance के बारे में, आपने इसको silent pandemic बोला है, and you've not said कि खाली ये इंडिया का प्रॉब्लम है, आपने बोला है पूरी ग्लोब का प्रॉब्लम। इट्स अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। सो बड़े सालों से ये एंटीबायोटिक्स ने पूरे पॉपुलेशन जो दुनिया की है हैज़ हेल्प्ड इट अ लॉट टू ओवरकम एंड ट्रीट दीज वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बट इसका यूज़ अब इतना ज़्यादा हो गया है, एंड बिना किसी कारण के जब लोग ले रहे हैं, इसके कारण बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। उसका मतलब ये है कि सपोज कुछ साल पहले तक एक बैक्टीरिया था जिस पे एंटीबायोटिक बहुत अच्छे प्रकार से उसे इफेक्ट कर रही थी एंड वाज क्योरिंग इट। नाउ द सेम बैक्टीरिया has had the same antibiotic attack it so many times because we keep taking it again and again. Even when the bacteria is not there, we keep taking it, so there is resistance, or in other words ये antibiotic काम करना बंद कर देती है कुछ लोगों में। इसके कारण जो अभी हम जिस टाइम पे बैठे हैं, अगले 10 to 20 ईयर्स में ऐसा टाइम आएगा कि ज़्यादातर प्रकार की एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगी। उसके कारण आपकी जो बेसिक इलनेसेस हैं, जो आज हम इतनी इजीली कर लेते हैं। So, give me examples. थोड़े से examples दीजिए, you know, of basic illnesses where we actually use antibiotics. सो यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है, 50 एंड अबव लेडीज में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एंड इसके लिए बहुत सिंपल एंटीबायोटिक्स आती हैं जो आप लेके क्योर हो सकते हैं। अब हमने जो देखा था एंड काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि ये सेम एंटीबायोटिक्स अब काम करनी बंद कर रही हैं। इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम कल्चर होता है। जी। किसी भी तरह का कल्चर आपको ये That's बताएगा also कि called blood culture. yes, so that's a blood culture, urine culture, stool culture, these are different, but किसी भी कल्चर में आपको ये बताते हैं कि वो एंटीबायोटिक कितनी पावरफुल है उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसमें हमने ये नोटिस करा, हमने ही नहीं केवल WHO ने, ऑल बिग हेल्थ केयर बॉडीज, दे नोटिस कि ये एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर रही हैं।
क्योंकि लोग ज्यादा यूज कर रहे उनकी हैं। इफेक्टिवनेस कम हो रही है। एग्जैक्टली जब डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन पे नहीं लिखते तो भी पेशेंट्स को लगता है नहीं खा लेते हैं जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत बारी फार्मासिस्ट ऑल्सो डिस्पेंस इट ओवर द काउंटर विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो इसी इशू को हमने बोला है कि ये साइलेंट पैंडेमिक है बिकॉज द repercussions and consequences of antibiotics not working for simple infections. Can be very, very dangerous. Exactly, it can lead to a lot of morbidity, serious infections, even And deaths in probably some it's cases. और शायद हो भी रहा है। Exactly. So currently AMR or antibiotic resistance is a looming health तो threat. इसमें आपका टेस्ट क्या है? यस सो इसमें हमने बहुत रिसर्च करी और हमने ये फाइंड आउट करा कि एक चीज होती है बैक्टीरियोफाजेस। बैक्टीरियोफाजेस आर नथिंग बट अ कॉकटेल ऑफ डिफरेंट वायरसेस। आपने सुना होगा कि लोग कहते थे कि जो गैंजेस रिवर है वो प्योर है। जी 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 वो क्यों बिल्कुल। बोलते थे? क्योंकि उसमें फाजेस, नेचुरल फाजेस आर फाउंड। These are basically natural viruses that keep the water clean. Yeah. It decomposes the waste, right? Exactly. Yeah. Now, there are certain institutes in the world, out of which the biggest and oldest institute is in this country called Georgia. Right. ये बहुत ही छोटी कंट्री है एंड ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से बैक्टीरियोफाजिस पे वहाँ पे इलियावा इंस्टीट्यूट है जो इन पे काम कर रहा था। तो हमें जब समझ आई दैट दिस इज अ एमिनेंट थ्रेट टू ह्यूमैनिटी, वी रीच्ड आउट टू इलियावा एंड वी गॉट इनटू अ कोलैबोरेशन विद देम। आवर टीम ऑफ डॉक्टर्स वेंट देयर also, studied this particular field, and then we got that bacteriophage testing to India. So for example, we get a lot of patients who come suppose with a urinary tract infection जिसपे कोई एंटीबायोटिक चल नहीं रही, काम नहीं कर रही। उन केसेस में हम उनको बैक्टीरियोफाज का टेस्ट कराते हैं। अगर बैक्टीरियोफाज टेस्ट में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल शो कि ओके दिस बैक्टीरियोफाज विल वर्क, फिर हम उनके लिए बैक्टीरियोफाजेस मंगवाते हैं जॉर्जिया से एंड देन उनका ट्रीटमेंट होता है। We've had close to 400 patients who've tested for this. Out of that, I would say about 10 to 15% have also gotten this treatment, and out of that, majority of them have a really good response. Right. And when the antibiotics are not working, they have a huge number of symptoms, and that gets controlled. The disease progression reduces. So I mean, for us to open the doors to something that is the future because of the antibiotic resistance is a great sense of accomplishment, and compliments to the team for having achieved that. No, because one has been hearing about, and rightly, we've been hearing about great accomplishments as far as India is concerned in the fields of surgery, in the field of pharmaceutical. But this kind of discourse one hasn't really heard of. That we've made impact on certain things that directly can help an individual. और हमने अर्जुन ये भी बहुत थॉटफुली रखा था, जो ये बैक्टीरियोफाज का टेस्ट होता है वो भी हमने कल्चर जितना ही रखा था ताकि द कॉमन मैन कैन अफोर्ड इट। हमारे पास पेशेंट्स पैन इंडिया से हर जगह से आते हैं ये टेस्ट कराने, क्योंकि इफ देयर इज सम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन्फेक्शन देन राइट नाउ दिस इज द वन ऑफ द ओनली सक्सेसफुल ट्रीटमेंट्स दैट इज अवेलेबल। There are other conditions that one comes across, and that's another thing that has been mentioned in your brochure is about allergies, right? And allergies seems to be increasing. Maybe pollution ज़्यादा हो गया है. The kind of air we are breathing in Delhi and in large metros of India. Tell us about allergies. Tell us about the tests that you have, and at what stage should someone say, okay, let me come and do a comprehensive, test? Of course. So Arjun, again, allergies are something जिनका prevalence या कितने commonly ये पाए जाते हैं, that percentage also has been increasing drastically. Now, if you look at Europe, there are about 30% of adults who have one allergy or the other. The percentage is even higher in children. Now, in India, in the past 20 years or 2 decades, there has been a 3x increase in the number of allergies that a person has. जैसे कि आपने बोला एकदम सही, इसके लिए अलग अलग कारण हैं जिसके वजह से allergies बढ़ रही हैं। एक तो urbanization है और एक हमारी डाइट है जिसमें अल्ट्रा प्रोसेस फूड्स जैसी चीज़ें होती हैं। एक और चीज़ भी होती है कि बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग नॉर्मल बर्थ्स एंड मोर सिजेरियन
Indian sections also has been contributing to this increase in number of allergies, and obviously allergies are getting diagnosed more also. So ये बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण एलर्जीज बढ़ रही है. इसमें से एक बड़ी इंटरेस्टिंग कॉज है, एंड दैट इज कॉल्ड द हाइजीन हाइपोथेसिस. हाइजीन हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि अगर आप हमारे फोर फादर्स को देखें, वो सारे फार्म्स में होते थे, उनका इंटरेक्शन होता था मोर विद नेचर, विद आउटडोर्स, विद पेट्स, एनिमल्स, थिंग्स लाइक दैट. एंड वहाँ उस टाइम ऐसे सैनिटाइजर्स एंड उस टाइम ऐसे एयर प्योरीफायर्स एंड ऑल दीज हाइजीन related things were lesser. इसी के कारण अब जब हम छोटे होते हैं बच्चे, उनको डर्ट से और जर्म से इतना दूर रखते हैं कि उनकी इम्यूनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती. इसी के कारण कुछ चीज़ें एज दे ग्रो अप, व्हेन दे कम इनटू कांटेक्ट विद, द बॉडी रिकॉग्नाइजेस देम एज एन ऑफेंडिंग एजेंट, जबकि वो नॉर्मल होता है. एंड इसके लिए पेरेंट्स को ये भी बहुत केयरफुल होना चाहिए कि दे डोंट ओवरडू any sterility. I mean, easier said than done. No, that's why I always say that every family should have a dog. हमारे पास दो हैं, and they bring in so much of dirt, and then they've got fur. So I mean, that's on a lighter note, Yes. of course. So keeping a balance between that is very important, and hygiene hypothesis is again one of the reasons. But again, coming to the problem and the solution to it, allergy test सबके लिए नहीं होता. ये एक preventive test नहीं है. अगर कुछ लोग हैं जिन्हें इनके बहुत ही कॉमन सिम्टम्स या लक्षण हैं, एलर्जीज के कॉमन सिम्टम होते हैं कुछ भी आपकी ब्रीदिंग से रिलेटेड या ईयर, नोज एंड थ्रोट से रिलेटेड, जैसे वीजिंग, स्नीजिंग, कॉफिंग, सांस लेने में तकलीफ, आंखों से पानी या आंखों में खारिश, ये सारी एलर्जीज होती हैं. इसके अलावा लोगों को अगर स्किन रैशेज हों, जिसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, हाइव्स बोलते हैं, जो बहुत ही इची जैसे रैशेज होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ एलर्जी. कुछ लोगों को कुछ चीज़ खाने के बाद एकदम वॉमिटिंग हो जाती है या प्रोफ्यूज डायरिया हो जाता है, दैट इज एन एलर्जी. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट रिकॉग्नाइज कि ये एलर्जी है. इसके लिए एक बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ टोटल IgE. ये हमारे सारे कोई भी पैकेजेस जो होते हैं उसमें भी इंक्लूडेड होता है जब भी पेशेंट को एलर्जी का टेस्ट कराना होता है. इसका नाम IgE बोला. यस, टोटल IgE. एंड अगर इसकी वैल्यू आपकी 1000 से अबव आती है और आपको सिम्टम्स भी होते हैं, देन हम ये एलर्जी टेस्ट आपको रेकमेंड करते हैं. नाउ एलर्जी टेस्टिंग एंड एलर्जी डायग्नोसिस की फील्ड में जो हमने इनोवेशन करा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि टिल अ फ्यू मंथ्स और ईयर्स बैक ब्लड टेस्ट होते थे एलर्जी के. जो दूसरा तरीका होता है एलर्जी टेस्ट करने का, उसके लिए डॉक्टर्स स्किन प्रिक टेस्ट करते हैं. उसका मतलब होता है कि अगर सपोज वो 10 फूड आइटम टेस्ट कर रहे हैं, तो वो आपके हाथ पे यहाँ पे 10 बारी नीडल से वो फूड आइटम को लगाएंगे और उसके 15 से 20 मिनट के बाद उसकी रीडिंग लेंगे. ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी ओल्ड टेक्निक दैट डॉक्टर्स डू इन देयर क्लिनिक, बट अदरवाइज व्हाट वी डिड वाज दैट नाउ वी आर एबल टू टेस्ट क्लोज टू 200 different allergens with a few drops of blood. Right. Now, this kind of blood testing was there in the past few years, but उस टाइम पे ये होता था कि पूरा एलर्जन या होल एलर्जन टेस्ट होता था. आपकी रिपोर्ट में लिखा होगा, अच्छा आप मिल्क से एलर्जिक है या नहीं, वीट से एलर्जिक है या नहीं, राइस से एलर्जिक है या नहीं. हमने ये सेम डायग्नोस्टिक वे को एक और लेवल ऊपर इनोवेट करके हम लेके गए, जहाँ पर हम हर फूड आइटम के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनकी भी जांच करते हैं. उस पे करेक्ट क्वेश्चन होगा कि इसका फ़ायदा क्या हुआ पेशेंट को. तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लाइक एक बच्चा है जिसको बहुत ज़्यादा सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, एंड वो कुछ भी खाते थे या पीते थे, उनके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उन्हें बहुत सिवियर एलर्जिक रिएक्शन होता था. 2-3 बारी वो हॉस्पिटल के इमरजेंसी जा चुके हैं, वहाँ पर उन्हें इंजेक्शंस लगे एलर्जी के लिए, एंड फिर कंट्रोल में आया. तो मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स ऑल आर वेरी कंसर्न्ड, and they met me and I told them that they should do this particular test. अब उस बच्चे की थोड़ी बहुत एलर्जीज आई हैं, बट उसमें सबसे ज़्यादा सिवियर एलर्जी और ग्रेड 5 एलर्जी हैज़ कम टू मिल्क. नाउ ऑब्वियसली दादा दादी परेशान है, मम्मी पापा परेशान है, इतने छोटे बच्चे को दूध नहीं दे सकते. तो यू अंडरस्टैंड दैट एग्जाइटी. एंड ऑल सेड एंड डन, मिल्क हैज अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन इन इट एज वेल. सो व्हाई वुड यू एक्चुअली नॉट गिव ऑल दैट टू द चाइल्ड. अब दूध के अंदर 2 तरह के प्रोटीन होते हैं अर्जुन. एक होता है वे, एक होता है केसीन. Right. अगर किसी भी व्यक्ति को केसीन से एलर्जी है,
तो उसका मतलब ये है कि वो दूध किसी भी फॉर्म में नहीं खा सकते। बट क्योंकि इस बेबी को वे से एलर्जी थी, वे के भी अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, अगर आप वही दूध उन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उबाल कर या बेक करके So दे, then they can have it. they can फिर have खा it सकते हैं. without any reaction. So that is just one example, but every food gives you so many No, insights. but you have the capacity to actually look at each child, क्योंकि आपने बोला वो आपको मिलने आए, but at the end of the day आपकी lab इतनी बड़ी है. How do you actually take care of that particular need of a Absolutely. So, patient? Arjun, if you call us today and say, I want to get an allergy test, but I'm not sure about if it's an allergy or not, you'll be connected to one of my team or me, someone on the other side of the line Who'll who then advise. understands allergies, who's a doctor, and then guide you accordingly. Right. And this test is called an allergenius test because it's the genius of allergies. And it's one of the most cutting edge ways that you can test allergies. Along with this, Arjun, along with the report, it's actually a very long report with an AI generated interpretation for every positive allergy as well. Right. So even someone who wants to go through the report and they read it, they understand most of it. Otherwise, our doctors are always available Right. to explain it to them. We saw the pandemic come. We saw COVID took probably millions of lives. How do you view that? I mean, in this day and age, a pandemic came out of nowhere. It's killed millions of people. Is there a fear of another one in the future? So, Arjun, the way that I look at it right now, no one can really predict when such a pandemic will come. Ever since the Spanish flu, we've always been fearing the worst, and I think the worst came and now it's gone away. But in the future, there is a probability that there will be another pandemic. The only thing that we can actually do is focus on our inner health, look at how holistically, with lifestyle, we can strengthen our immune system so that if the pandemic or something like that, may God forbid, happens again, हमारी अंदरूनी शक्ति मैक्सिमम हो ताकि हम उस इन्फेक्शन को बहुत ही इफेक्टिव वे में फाइट कर पाए. So that is one thing. But second thing, for the healthcare fraternity, for all the young healthcare professionals also, one thing that the pandemic made us understand was that it's never about people. It's about the processes that people follow. Right. And also that innovation at every stage. All of you, whether it was your lab or others, and your technicians, were at the forefront of that fight. Right? Absolutely, You were absolutely. in many ways the barriers who actually prevented it from exploding. And the learning curve was pretty fast, wasn't it? Absolutely. New tests came in, new procedures came in. Then of course the government rolled out the vaccine. So Arjun, I'll give you an example. जब कोविड शुरू हुआ था एंड लॉकडाउन में था पूरा शहर, एंड हमें ये प्रॉब्लम हो रही थी कि हम हज़ारों टेस्ट्स लैब में रन तो कर सकते हैं, जो हम पीसीआर टेस्ट बोलते हैं, बट उनको हम कलेक्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारा स्टाफ भी इन्फेक्टेड था. Right. और स्टाफ भी लिमिटेड है और इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड थी. दैट इज़ व्हेन वी केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइव थ्रूज, Right. जो हम दिन में 200 या 300 कलेक्शन कर पा रहे थे अपनी होम कलेक्शन टीम, एंड उससे हमने ऐसे 6 सेंटर्स लगाए जिसमें हर सेंटर में हमारे 300 से 500 सैंपल दिन के कलेक्ट हो रहे थे. सो दैट वाज एन इनोवेटिव आइडिया, Right. एंड दैट हेल्प्ड अस इंक्रीज द. I think you had one in Shreveport Road Yes, also, if I yes, remember. in Yeah, I Shreveport, think yes. someone went there, and so of course, I think COVID is such an important subject, and I think maybe at some point we must, or I must talk to you about it, about how that whole experience was. In fact, our team here that you see, we actually shot in Ames. Okay. While the pandemic was at its, we were probably one of the few teams that got access at that point of time. So of course, and the labs came to our rescue. And is there anything else that you'd like to in the next 1 minute talk about, because we need to wind this up? So Arjun, I think we've covered most of the topics, and I think in this industry, in healthcare, I think it is critical to remain focused on patient care, and I think we can wind up with this line that again my dadu used to say, was that a doctor is a doctor till he's a student. Right. So we learn every day, and every day is a new day, and with all our powers combined to giving our patients the best.
Well, thank you so much for joining us, Arjun Rang. This was amazing, this conversation. We've learned so much about testing and about your legacy, and of course, the wonderful lab that you have. And do keep watching Health Mantra as well as our program Health Matters. This is Arjun Bhagat signing out. ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।